Hello everyone, welcome to my channel Easynomics. I am Shweta Goyal and in today's lecture we will be discussing about the Hicksian demand curve and Hicksian price effect. Basically for the price effect we can divide it into the substitution and income effect. So yeah, let's get started. So basically first let's see what is price effect. Price effect is the total change in quantity due to change in the price. Now this price effect can be a sum of income effect and substitution effect. यहाँ पे देखते हैं. So basically ये मैं आपको ऑलरेडी बजट लाइन वाली क्लास में बता चुकी हूँ कि जब हमारा प्राइस में चेंज होता है तो हमारी बजट लाइन जो होती है वो रोटेट करती है. ठीक है, तो मान लो ये हमारी ओरिजिनल बजट लाइन थी, तो जब हमारा प्राइस कम हुआ तो ये आउटवर्ड शिफ्ट हो गई. जब ये आउटवर्ड शिफ्ट होगी तो ये हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था, ये नया इक्विलिब्रियम आएगा, तो इसको हम प्राइस इफेक्ट बोलते हैं. बेसिकली चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड due to change in price. Now this price effect is bifurcated into income effect and substitution effect. Now what is income effect? Income effect is when your price decreases, your purchasing power increases, that is your real income increases. If with the same income you can now buy more, so with increase in real income your demand increase. So when price decreases, demand increases. This is the income effect due to change in the real income. Now coming to the substitution effect. What is substitution effect? When your price of X decreases, so good X becomes relatively cheaper than good Y. So we will substitute good X for good Y and hence demand for X will increase. So this is known as the substitution effect. So yes, price effect consists of the income effect and the substitution effect. Now this price effect is explained by two economists. One is Hicks and second is Slutsky. In today's class we will be talking about Hicks and in the next class I will be talking about the Slutsky. So for the Hicks, actually Hicks ने क्या बोला था? Hicks said keep purchasing power constant. It means when your price changes. For example, अगर आपका प्राइस कम होता है तो आपकी रियल इनकम और परचेजिंग पावर बढ़ जाती है. तो हिक्स ने बोला कीप दैट परचेजिंग पावर कांस्टेंट. इट मीन्स अगर आपका प्राइस चेंज होने की वजह से रियल इनकम में चेंज आ रहा है तो उस एक्स्ट्रा रियल इनकम को ले लो, और जो तुम एक्स्ट्रा रियल इनकम को लोगे तो जो तुम्हारी नई बजट लाइन आएगी उसे कंपनसेटेड बजट लाइन बोला जाता है. ठीक है, तो हिक्स ने क्या बोला? कीप योर परचेजिंग पावर कांस्टेंट in such a way that after changing price your utility will remain constant, that is you will be remain on the same IC. If your price changes then your real income may affected but you will keep the consumer on the same IC. उनका utility change नहीं करोगे, बट अगर तुम उनसे एक्स्ट्रा इनकम या जो कम इनकम कम हुई है वो तुम उन्हें नहीं दोगे तो वो अपनी ओरिजिनल यूटिलिटी से हट जाएगा. तो तुम्हें रियल मनी इनकम, रियल मनी पावर कांस्टेंट रखनी है इन सच अ वे दैट आफ्टर चेंजिंग प्राइस रेशियो चेंज होने के बाद यूटिलिटी विल रिमेन सेम. इट मीन्स द कंज्यूमर विल रिमेन ऑन द सेम IC. इट मीन्स चेंज इन मनी, तुम मनी इनकम को ऐसे चेंज करो सो दैट योर चेंज इन रियल इनकम विल कैंसल आउट. एंड इन सब को करने के लिए जो आपको बनानी पड़ेगी उसे कंपनसेटेड बजट लाइन बोलते हैं. सो दैट विल बी नोन एज योर कंपनसेटेड बजट लाइन. दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ हिक्स. नाउ हिक्स का हम 3 केसेस पढ़ेंगे. एक्चुअली टोटल 6 केसेस हैं. तीनों ही केसेस में एक प्राइस इंक्रीज का केस एंड एक प्राइस फॉल का केस, तीनों में. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग वन केस टू यू. द रेस्ट वन केस is being done by you and you will again post your answers on the comment section or you can send a message to me on Instagram. So let's talk about case 1. In case 1 we will be taking normal good. Normal good वो गुड होते हैं जिनका प्राइस के साथ डिमांड का इन्वर्स रिलेशन होता है. अगर आपकी प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, तो उसे नॉर्मल गुड बोलते हैं. नाउ आई विल बी डिस्कसिंग द केस ऑफ डिक्रीज इन प्राइस. प्राइस इंक्रीज का केस आपको खुद करना है. सो मैंने क्या करा, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स लिया, वाई एक्सिस पे गुड वाई लिया. ये मेरी ओरिजिनल बजट लाइन थी ए बी. दिस वॉज मेरी ओरिजिनल बजट लाइन. नाउ सिंस माई प्राइस हैज़ बिन डिक्रीज्ड सो माई बजट लाइन विल शिफ्ट आउटवर्ड.
सो दिस ए बी डैश इज़ माई न्यू बजट लाइन, बट अकॉर्डिंग टू हिक्स हमें क्या करना है, हमें उस कंज्यूमर को सेम इक्विलिब्रियम पे रखना है। तो हमें क्या करना है, अब उसकी रियल इनकम प्राइस चेंज होने की वजह से बढ़ गई होगी, तो हम उससे वो एक्स्ट्रा इनकम वापस ले लेंगे। जब हम उससे एक्स्ट्रा इनकम वापस लेंगे, सो दिस वाज हिज न्यू इनकम, एक्स्ट्रा इनकम वापस ली, तो ये जो हमारी बजट लाइन थी ये पैरेलली नीचे शिफ्ट हो गई, दैट इज सी डी, और दिस सी डी इज नोन एज द कंपनसेटेड बजट लाइन। सो दिस सी डी इज नोन एज योर कंपनसेटेड बजट लाइन। नाउ ओरिजिनली यू वर एट दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम E1 पे X1 कंज्यूम कर रहे थे। अब तुम्हें क्या करना है, कंपनसेटेड बजट लाइन पे तुम्हारा सेम IC पे, ये हमारा सेम IC है, यहाँ पे ये नया इक्विलिब्रियम होगा। मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम कीपिंग दी कंज्यूमर ऑन सेम यूटिलिटी लेवल, यानी सेम IC पे उसका इक्विलिब्रियम आएगा, एंड ऑन दी कंपनसेटेड बजट लाइन। सो यहाँ पे ये टेंजेंट है तो ये E3 आएगा। So this is your X1, this is your X3. So from X1 to X3, this is your substitution effect. ठीक है, this is your substitution effect. Now what you will do, तुमने जो उससे real income extra वापस ले ली थी, now give that back to the consumer to check the effect of income effect. So basically जब हमने उसे उसकी income वापस दे दी, तो this CD से हम वापस AB डैश पे आ गए। जब हम वापस ए बी डैश पे आ गए तो हमारा नया इक्विलिब्रियम विल बी E2, दैट इज X2। सो यहाँ से यहाँ तक जो होगा दैट विल बी आर इनकम इफेक्ट। एक बार शुरू से देख लो, ए बी वॉज आर ओरिजिनल बजट लाइन, प्राइस कम हुआ, आउटवर्ड शिफ्ट हुई ए बी डैश, बट हमें उससे रियल इनकम उसकी बढ़ गई है, वो वापस लेनी है, हिक्स ने ऐसा बोला था, तो हम वापस लेंगे तो हमारी सी डी बजट लाइन आएगी। सी डी हमारी कंपनसेटेड बजट लाइन है। नाउ हमें ऐसा इक्विलिब्रियम निकालना है, वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो ओरिजिनल आईसी पे हो और कंपनसेटेड बजट लाइन पे हो। सो E1 एंड E3, तो यहाँ से जब हम इसे ऐसे मूव करेंगे तो हमारा E1 से E3 हम शिफ्ट हुए, दैट इज़ योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फिर हमने उसको जितनी इनकम दी थी वो वापस दे दी तो हम CD से वापस AB डैश पे आ गए। AB डैश पे आ गए तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम इज एट E2। सो बेसिकली दिस इज़ योर इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। एक चीज़ का ध्यान रखना, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उन्हें नॉर्मल गुड बोला जाता है। इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मूव्स इन दी सेम डायरेक्शन, दैट इज नोन एज दी नॉर्मल गुड। नाउ इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। कंपनसेटेड डिमांड कर्व का, कंपनसेटेड डिमांड कर्व इन द केस ऑफ हिक्स कैसे निकालते हैं। बेसिकली कंपनसेटेड डिमांड कर्व का ये मतलब होता है वो डिमांड कर्व जिसमें हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इनकम इफेक्ट को नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्राइस लेंगे, डिमांड लेंगे, ये हम तीनों डिमांड को नीचे ले आएंगे, X1, X2, X3 को। अब यहाँ पे हमने क्या करा, पहले हमारा ये वाला प्राइस था P1, इस प्राइस पे हमारी ये डिमांड थी E1 वाली, ठीक है। फिर जब हमारा प्राइस कम हुआ हम P2 पे आए तो P2 पे हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट X3 था, तो कहाँ आ गया, ये आ गया। तो जब तुम इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये तुम्हारा कंपनसेटेड डिमांड करवाएगा इन केस ऑफ हिक्स। और अगर तुम X3 से ज्वाइन करते हो, इट मीन्स फाइनल वाले से ज्वाइन करते हो, X2 से सॉरी, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल डिमांड कर्व। तो दिस इज योर नॉर्मल डिमांड कर्व, दिस इज योर कंपनसेटेड डिमांड कर्व। देयर इज वन बेसिक डिफरेंस, in normal demand curve your income effect is also considered, but in your this compensated demand curve your income effect is not incorporated, only substitution effect. Now let's study about the case 2. Again in case 2 we have two cases, price decrease and price increase. I'll be talking about price decrease. ठीक है, तो केस 2 में हमारे पास इन्फीरियर गुड है बट वो गिफिन नहीं है। इन्फीरियर का मतलब ये होता है अगर आपकी उनका प्राइस से कोई रिलेशन नहीं होता, उनका इनकम से रिलेशन होता है। सो इफ़ योर इनकम इंक्रीजेस योर कंजम्पशन ऑफ दोज गुड विल डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्ट्रीट से कुछ सामान खरीद के लाते हो, स्ट्रीट वेंडर से वेजिटेबल्स खरीदते हो, फ्रूट्स खरीदते हो, तो लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप वही मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लाते हो। तो जब मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लाओगे तो इट मीन्स उनकी जो ओरिजिनल स्ट्रीट वेंडर्स वालों की डिमांड थी वो कम हो गई। तो ऐसे गुड्स को इन्फीरियर गुड बोलते हैं जिनका इनकम के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। और गिफिन गुड वो गुड होते हैं जिनका प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। नॉर्मल गुड में हमने देखा था कि मतलब प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही थी, लेकिन यहाँ पे गिफिन में क्या होता है, अगर तुम्हारी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हम सेकंड गुड कंसिडर करें जिसमें गुड इन्फीरियर तो है बट गिफिन नहीं है। नाउ प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है। अगेन मैंने यहाँ पे y लिया, यहाँ पे x लिया, x एक्सिस y एक्सिस। दिस वाज माय ओरिजिनल बजट लाइन, सॉरी दिस वाज माय ओरिजिनल बजट लाइन। ये A,
बी माई ओरिजिनल बजट लाइन थी, मेरा प्राइस कम हुआ, सो बेसिकली दिस शिफ्टेड आउटवर्ड, दिस इज ए बी डैश। जब ए बी डैश आई तो अब उनकी इनकम बढ़ गई, इनकम मुझे वापस लेनी है, तो आई ड्रॉ कंपनसेटेड बजट लाइन, सो दिस इज माई कंपनसेटेड बजट लाइन। नाउ दिस इज माई E1, मेरा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था जो कि X1 पे था। अब हमें क्या करना है, कंपनसेटेड पे इक्विलिब्रियम लाना है और सेम IC पे लाना है, तो मेरा इक्विलिब्रियम आएगा E3, सो दिस इज माई X3, सो मेरा X1 से X3 हो गया सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। नाउ मैं क्या करूँगी, जितनी मैंने इनकम ली थी मैं उसको वो इनकम वापस दे दूँगी, तो जब मैं इनकम उसको वापस दूँगी तो मैं अगेन ए बी डैश पे आऊँगी और जो मेरा नया इक्विलिब्रियम आएगा वो E2 आएगा, जो कि बेसिकली यहाँ आएगा X2 पे। तो आपको दिख रहा होगा कि X1 टू X3 जो कि ज़्यादा था वो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट था, और X3 से X2 जो है वो आपका इनकम इफेक्ट है, और इन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है इनकम इफेक्ट से। ठीक है, यही एक रीज़न होता है कि इन्फीरियर होते हैं बट गिफन नहीं होते। तो जब आपने एक चीज़ नोटिस करी कि एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे आ रहा है, तो जब इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इनवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं तब इन्फीरियर बट नॉट गिफन वाला केस होता है। ये एक पहचान है आपका आंसर क्रॉस चेक करने की पेपर में कि भाई मैं सही कर रही हूँ या नहीं। उसके बाद इसमें भी अगर मैं सेम कंपनसेटेड डिमांड कर्व बनाऊँगी तो दिस वाज माय ओरिजिनल प्राइस, दिस वाज माय ओरिजिनल क्वांटिटी, उसके बाद मेरा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ये था X3 एंड प्राइस डिक्रीज होने के बाद मेरी डिमांड यहाँ आती, सो दिस विल बी माय कंपनसेटेड डिमांड कर्व विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग इन दिस केस ऑल्सो। सो दिस इज द सेकेंड केस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस cases. I'll be talking about price decrease and price increase का case you have to do. Now in this case we have good which is inferior plus given, मतलब दोनों हैं, and in this case so let's see, ये हमारा A था, ये हमारी B थी, ओरिजिनल बजट लाइन थी, दिस शिफ्टेड आउटवर्ड, सो ये ए बी डैश हो गई, दिस वाज ओरिजिनल बजट लाइन शिफ्टेड आउटवर्ड ए बी डैश। अब हमने क्या करा, रियल इनकम उसकी बढ़ गई होगी तो हमें इनकम वापस लेनी है, तो हमने कंपनसेटेड बजट लाइन ले ली, तो इनकम बजट लाइन जो थी वो पीछे की तरफ मूव कर गई। जब ये पीछे की तरफ मूव हुई तो हमें क्या करना है, नया इक्विलिब्रियम ओरिजिनल IC पे बनाना है और CD पे बनाना है, तो दिस इज आर न्यू इक्विलिब्रियम E3, तो ये X1 ये X3, ठीक है, तो ये X1 से X3 क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नाउ अब आपने उसको उसकी इनकम वापस दे दी, जब आप इनकम वापस दोगे तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना कि ये गिफन गुड है, तो अगर आपका प्राइस कम हो रहा है तो इनकम डिमांड भी कम होगी, तो आप इस E1 के इस एरिया में नहीं आ सकता, आपका नया वाला इक्विलिब्रियम सिर्फ इतने एरिया में आएगा, तो ये आपका नया इक्विलिब्रियम हो गया, ये आपका X2 हो गया, तो ये आप वापस आए। तो इसमें आपने देखा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज लेसर देन द इनकम इफेक्ट। सो इन दोनों केसेस में इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट एक केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा है और दूसरे केस में इनकम इफेक्ट ज़्यादा है। तो ये इनको पहचान करने का तरीका है। और अगेन जब मैंने इसका कंपनसेटेड डिमांड कर्व बनाया तो P1 पे मेरी डिमांड ये थी ओरिजिनल, ठीक है, और जो P2 था मेरी डिमांड ये हो गई E2, तो ये मेरा बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग कंपनसेटेड डिमांड कर्व। इवन इन केस ऑफ गिफन नॉर्मल डिमांड कर्व इज ऑल्सो अपवर्ड स्लोपिंग। सो या इसी एक्चुअली सॉरी आई मेड अ मिस्टेक हियर, दिस इज नॉर्मल डिमांड कर्व। इसमें कंपनसेटेड डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड ही बनेगा क्योंकि ये E था, ये मेरा E3 था, सो ये यहाँ, ये E3 मेरा यहाँ आएगा। सो आपका इस केस में ये देख लेना कि आपका जो नॉर्मल डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, लेकिन जो कंपनसेटेड है वो तो डाउनवर्ड ही बनेगा। सो दीज थ्री केसेस विच एक्सप्लेन्ड बाय द हिक्स फॉर द एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइस इफेक्ट. In the next video I'll be talking about the Slutsky price effect. One thing I would suggest you that if you are not clear that how these budget lines are moving, how IC, what is IC, how equilibrium is achieved, etc. So you can watch out my video on the ordinal utility theory. I'll also attach the link in the description box, so you can watch that video, you can clear your concepts, and then you can come and watch this video to clear a concept for the Hicksian price effect. So basically this is very important and very frequently asked by the UPSC. I hope you are clear with the concept. If you really like the content of my video, then please do subscribe my channel if you haven't done it yet for more such updates. Stay tuned. Thank you.